میری امی کو کچھ ہوگا تو نہیں، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی، میرے پاس صرف میری امی ہے، میں انہیں نہیں کھو سکتی۔ وہ روتے ہوئے دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ نور اور عمیر پریشان سی صورت بنا کر عبیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ عمیر آگے آ کر عبیرہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ شہریار تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ نور، عمیر، آپ دونوں دعا کرو میری امی کو کچھ نہ ہو، اللہ پاک بچوں کی دعائیں بہت جلد سنتے ہیں۔ عبیرہ دونوں کی طرف دیکھ کر بولی، آپ مت روئیں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں۔ عمیر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عبیرہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اللہ جی ہماری ماما کی امی کو ٹھیک کر دیں۔ عمیر اور نور دونوں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے۔ عبیرہ عمیر کو گلے سے لگا کر رو دی۔ شہریار نے اپنی آنکھ میں آئے آنسو کو صاف کیا۔ بہت پہلے وہ بھی یہ سب فیس کر چکا تھا۔ وہ دل سے دعا کر رہا تھا کوئی معجزہ ہو جائے اور نجمہ بیگم بچ جائیں۔ 3 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ ہسپتال پہنچے۔ یہ گاؤں سے دور شہر کا مشہور ہسپتال تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ہسپتال پہنچے، عبیرہ 1 منٹ بھی انتظار کیے بنا دروازہ کھول کر اندر کی طرف بھاگی۔ شہریار عمیر اور نور کو لیے اس کے پیچھے آ گیا۔ عبیرہ جیسے ہی اندر پہنچی، سامنے کوریڈور میں رخشندہ خالہ کے ساتھ فری بیٹھی نظر آئی۔ عبیرہ بھاگ کر ان تک آئی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عبیرہ نے رخشندہ خالہ کے پاس آ کر پوچھا۔ میری بچی وہ اندر ICU میں ہے، رخشندہ خالہ روتے ہوئے بولی۔ عبیرہ سامنے ICU کی طرف بھاگی۔ اس سے اندر سامنے وینٹیلیٹر پر لیٹی نجمہ بیگم نظر آ رہی تھی۔ امی، وہ روتے ہوئے بولی۔ عبیرہ امی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تبھی اسے اپنے قریب سے موہت کی آواز آئی۔ آپ کیوں آئے؟ عبیرہ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ سب اسی کے آنے سے ہوا ہے، نہ یہ آتا نہ آج میری بہن اس حال میں ہوتی، رخشندہ خالہ غصے سے بولی۔ شہریار نور اور عمیر کو لیے وہاں پہنچا۔ موہد آج اجالا اور ابراہیم کو لے کر گھر آیا تھا۔ نجمہ تو ایک دفعہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، پر یہ دونوں تو اپنے لالچ کو ہی آئے تھے۔ مگر دوپہر کو موہد نے نجمہ سے گھر کو بیچنے کی بات کی، جس سے نجمہ نے انکار کر دیا۔ دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ یہ اپنی ماں سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ نجمہ نے اس بات کی بہت ٹینشن لی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ آخر میں رخشندہ خالہ رو دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پہلے ساری زندگی آپ نے مجھے اور میری امی کی پرواہ نہ کی اور پھر اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، تو اب کیوں امی اور ابا کی آخری نشانی ہمارا گھر چھیننے آ گئے؟ عبیرہ سب سن کر روتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے میں نے بہت برا کیا، پلیز امی کو بولو وہ ٹھیک ہو جائیں، میں خود ان سے معافی مانگ لوں گا۔ موہد روتے ہوئے بولا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، موہد بھائی آپ اتنے سیلفش کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں آپ کو صرف پیسہ نظر آیا؟ کیوں امی کی آنکھوں میں آپ کو بیٹے کی جدائی کے دکھ نظر نہیں آئے؟ کبھی آپ نے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا اور نہ ہی بیٹا ہونے کا۔ اگر کوئی فرض ادا کیا تو صرف شوہر ہونے کا۔ اگر امی کو کچھ ہوا، قسم سے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آخر میں انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوگا۔ فری عبیرہ کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ عبیرہ سسک پڑی۔ فری نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ شہریار پانی لے کر آیا۔ وہ عبیرہ کے پاس بیٹھا اور اسے تسلی دے کر پانی پلانے لگا۔ شہریار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ شہریار نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تبھی ICU سے ڈاکٹر باہر نکلا اور ان کی طرف آیا۔ سبھی اس کی طرف بڑھے۔ میری امی کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عبیرہ جلدی سے بولی۔ دیکھیں، آپ کی مدر نے بہت زیادہ ٹینشن لی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بہت سویئر ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، مگر افسوس ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر اپنا چشمہ اتارتے ہوئے افسردہ لہجے میں بولا۔ یہ خبر سب پر بجلی کی طرح گری۔ نہیں، امی امی، عبیرہ انہیں پکارتے ہوئے شہریار کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ عبیرہ آنکھیں کھولو۔ شہریار نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ موہد ایک دم لڑکھڑایا۔ اس کے آس پاس یہ جملے دوڑ رہے تھے، نجمہ بیگم کی باڈی کو ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ بہت کوششوں کے بعد عبیرہ کو ہوش آ گیا۔ شہریار اسے لے کر گھر آ گیا۔ سامنے چھوٹے سے ہال میں نجمہ بیگم کی میت کو رکھا گیا۔ پاس بہت ساری گاؤں کی عورتیں عجیب و غریب سے بیان کر رہی تھیں۔ عبیرہ بس باس بیٹھی اپنی ماں کا چہرہ تکے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کا ماتھا چومتی۔ شہریار باہر دوسرے انتظام دیکھ رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد نجمہ بیگم کی میت کو اٹھانے کے لیے شہریار، موہد اور 2-4 بندے اندر آئے۔ جب وہ میت کو اٹھانے لگے، عبیرہ کو ہوش آیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ رخشندہ خالہ اور فری نے اسے الگ کیا۔ سبھی مردوں نے میت کو اٹھایا اور لے گئے۔
मेरी अम्मी को मत लेकर जाओ, खुदारा मत लेकर जाओ, खाला इन्हें रोको, मेरा दिल फट जाएगा। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए चिल्लाई और एक बार फिर से रक्षंदा खाला के हाथों में बेहोश हो गई। शहरयार और मोहित कब्रिस्तान से वापस आए। मोहित बहुत ज़्यादा रो रहा था। शहरयार ने उसे गले से लगाया। मैंने बहुत गलत किया, मैं क्या करूं, अब कैसे अपनी अम्मी से माफ़ी मांगूं? वो रोते हुए बोला, कुछ चीज़ों की कभी माफ़ी नहीं मिलती। अपने माँ बाप की नाफरमानी करने की माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलती। और जो मोहित ने अपनी बेवा माँ के साथ किया था, उसकी माफ़ी मिलना तो शायद नामुमकिन था। पता नहीं नई नस्ल माँ बाप के बगैर रहने में क्यों खुशी महसूस करती है। ऐसी कौन सी खुशियाँ हैं जो माँ बाप के बगैर मिलती हैं? वो माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी हो, देखभाल करने के टाइम पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। अफसोस है ऐसी औलाद पर मोहित जैसे इंसान रह जाते हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ पछता सकते हैं। चल घर चलते हैं। शहरयार उसे लेकर घर आ गया। वो दोनों मर्दान खाने में मौजूद थे। उस वक्त दोपहर का 1 बजा हुआ था। अबीरा पिछले 2 घंटों से कभी होश में आती और कभी फिर से बेहोश हो जाती। शाम के 7 बजे के करीब फरहान साहब का जहाज़ लैंड हुआ। शहरयार ने गाड़ी भेज दी। वो उस वक्त मर्दों के पास बैठा हुआ था। जैसे ही फरहान साहब आए, शहरयार उनके पास आ गया। वो बहुत टूटे हुए दिख रहे थे। कुछ साल पहले अपनी बीवी को खोने के बाद आज अपनी बहन को भी खो दिया। बाबा आप ठीक हैं? शहरयार ने उन्हें संभालते हुए कहा। मुझे अबीरा बेटी के पास ले जाओ, पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। फरहान साहब भीगे हुए लहजे में बोले। जी बिल्कुल चलें। शहरयार उन्हें लिए अबीरा के कमरे में आ गया, जहां बेड पर अबीरा बैठी रो रही थी। नूर और उमैर भी उसके पास बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर फाखरा बेगम शुमाइला के साथ बैठी हुई थी। वो वापस पलट गया। अबीरा बेटी फरहान साहब उसके पास बेड पर आकर बैठे। मामू जान मेरी अम्मी। अबीरा उनके गले लगकर रोते हुए बोली। बस सब्र करो मेरी बच्ची, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। फरहान साहब उसे चुप करवाते हुए बोले, लेकिन वो रोए जा रही थी। मामू जान मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे हर जगह अम्मी नज़र आ रही हैं। वो रोते हुए बोली। मेरी बच्ची, वो तो अल्लाह की अमानत थी जिसे अल्लाह ने वापस ले लिया। रो मत, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करो। चलो शाबाश, उठकर नमाज पढ़ो। फरहान साहब ने उसे बमुश्किल संभाला और वो उठकर बाहर मर्दों के पास चले गए। मामा आप रो मत, हम दोनों आपकी अम्मी के लिए दुआ करते हैं। अबीरा रो रही थी। तभी नूर और उमैर बोले, रो मत प्लीज़। नूर उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली। अबीरा को और रोना आ गया। उसने नूर और उमैर को सीने से लगा लिया। व्हाट अ सिली ड्रामा। शुमाइला जो कब से ये सब देख रही थी, दिल में बोली और उठकर बाहर किचन की तरफ आई। रात के 12 बजे के करीब सब गांव वाले अपने घरों को चले गए। घर तो वैसे भी छोटा था। अजीर साहब और उनकी बीवी एक कमरे में सो गए। शुमाइला को इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं थी। वो टीवी लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। शहरयार सबको रुखसत करके घर आया। वो सीधा अबीरा के पास जाना चाहता था। वो जानता था कि कितने कुर्ब में होगी। वो चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शहरयार बात सुनो। तभी शुमाइला ने उसे रोका। वो एक पल को रुका। आई नो ये बहुत बड़ा सदमा है, अबीरा की अम्मी का अचानक यूँ छोड़कर चले जाना। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो उसके पास आकर अफसुर्दा लहजे में बोली। अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है तो मैं याद दिला दूं, वो सिर्फ अबीरा की अम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी भी कुछ लगती थी। फुफ्फो थी ना तुम्हारी। वैसे तुम्हें ये सब कैसे याद होगा? तुम कौन सा यहाँ आती थी? शहरयार तंजिया अंदाज में बोला। हाँ, और मुझे कोई शौक भी नहीं इस फटीचर घर में आने का। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज़ आते थे। शुमाइला तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, नहीं आता था, पर कम से कम रिश्तों का ज़रूर पता है। शहरयार कहता हुआ बिना उसका जवाब सुने चल दिया। बड़ा आया। देखना मिस्टर शहरयार, तुम्हें सीधा कर दूंगी। ऐसा उंगली पर नचाऊंगी कि अबीरा नामी बला को भूल जाओगे। खलसते हुए बोली और वापस जाकर सोफे पर लेट गई। शहरयार शुमाइला से जान छुड़वाकर सीधा अबीरा के कमरे में आया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सीधी अबीरा की बैक पर पड़ी। वो जाए नमाज बिछाए दुआ मांगने में मसरूफ़ थी। वो रोते हुए अपने रब से अपनी अम्मी की मगफिरत की दुआएं मांग रही थी। शहरयार बिना शोर किए दरवाज़ा बंद करके रूम में अटैच बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला, तब अबीरा नमाज अदा करके बेड पर बैठी हुई थी। शहरयार ने नूर और उमैर पर चादर ठीक की। वो अबीरा के पास आकर बैठ गया। अबीरा ने बिना कुछ बोले शहरयार के कंधे पर सर रख दिया। शहरयार ने उसे कंधे से पकड़कर अपने साथ लगाया। वो बिना कुछ कहे बस आंसू बरसा रही थी। शहरयार ने उसे रोने दिया।
ऐसा क्यों हुआ? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, मैं भी यही सोचता था, ऐसा क्यों हुआ। जानता हूँ अपनी अम्मी को खोना कितना मुश्किल है, पर तुम तो उनकी बहादुर बेटी हो ना, तुम तो हिम्मत से काम लो। वो उसके सर पर बोसा देते हुए बोला, ये कहना बहुत आसान है, हिम्मत से काम लो, ये हिम्मत कहाँ से मिलती है। और अब तो मेरे सर से माँ का साया भी उठ गया, अब्बू तो पहले ही छोड़ गए थे, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। वो रोते हुए बोली। शहरयार के दिल को कुछ हुआ। बस अबीरा चुप कर जाओ, इतना रोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और जहाँ तक बात रही हिम्मत की, तो अल्लाह पाक अगर कुछ छीनता है तो उसके दर्द को सहने की हिम्मत भी देता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शहरयार उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें बुखार भी हो रहा है, चलो लेट कर सो जाओ। शहरयार उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाते हुए बोला और खुद भी लेट गया। अबीरा को नींद तो नहीं आ रही थी। वो शहरयार के सीने पर सर रखे उससे नजमा बेगम की बातें कर रही थी और शहरयार उसे बहुत प्यार से जवाब दे रहा था। नजमा बेगम की वफ़ात को 1 हफ्ता हो चुका था। अजीर साहब तो अगले ही दिन चले गए थे। फरहान साहब और शहरयार ही अबीरा के साथ यहाँ थे। मोहित अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहीं था। शहरयार का काम इतने दिनों का रुका हुआ था, इसीलिए शहरयार ने वापस जाने का बोला। अबीरा का दिल तो नहीं कर रहा था, पर वापस जाना भी ज़रूरी था। नूर और उमैर का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। वो उमैर और नूर का सामान पैक कर रही थी, जो शहरयार बाद में बाजार से लाया था। नजमा बेगम के कमरे में जाकर कुछ चीज़ें लेकर वो अपने कमरे में आई और पैकिंग करने लगी। सब तैयार होकर जाने के लिए बाहर आए। वो घर को देखते हुए हाथ में चाबी और पेपर्स लेकर मोहित के पास आई, जो एक तरफ खड़ा था। आपको यही चाहिए थे जिसके लिए आपने मेरी अम्मी से बदतमीज़ी की। आपको यही चाहिए थे ना जिसके लिए उस दिन आपने अम्मी से बदतमीज़ी की। अब आप इस घर के साथ जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं। जानती हूँ इस घर पर आपका और मेरा हक है, पर मैं अपना हक मुआफ़ करती हूँ। आज से ये घर आपका हुआ। अबीरा पेपर्स पर साइन करते हुए बोली। पेपर्स और घर की चाबी मोहित के हाथ पर रखी और बिना उसका चेहरा देखे बाहर की तरफ बढ़ी। मोहित शर्मिंदगी से उन पेपर्स को देख रहा था। उजाला बहुत खुश थी। वो बाहर आई। शहरयार परेशान सा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सब गाड़ी में बैठे तो शहरयार ने गाड़ी चला दी। अबीरा ने मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखा। पिछली बार जब वो वापस जा रही थी, नजमा बेगम रखशंदा खाला के साथ खड़ी उसे अलविदा कह रही थी, पर इस बार वो जगह बिल्कुल वीरान थी। थोड़ी दूर जाते अबीरा ने चेहरा मोड़ लिया। नहीं, बस कुछ घंटों तक मैं वापस आने वाला हूँ। हाँ, सीधा ऑफिस ही आऊँगा। तुम फ़ोन रखो, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। उसने फ़ोन काटा और मैनेजर को फ़ोन मिलाने लगा। 3 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद बिलाखिर वो घर पहुँच गए। शहरयार मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ रहा। सबको घर उतार कर वो सीधा ऑफिस के लिए निकला। फरहान साहब जानते थे कुछ तो बहुत अहम वजह है, इसलिए वो इतना परेशान है, और वो ज़बरदस्ती उसके साथ ऑफिस आ गए। शहरयार गाड़ी को भगाता हुआ ऑफिस पहुंचा। अपने कमरे में आया। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो फाइल को टेबल पर टुचकते हुए बोला। सभी उसके गुस्से से घबराते थे। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर इस चेक्स पर मेरे साइन नहीं थे तो तुम कैसे किसी को भी 2 करोड़ दे सकते हो? शहरयार टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाया। देखें, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो हम कैसे इनकार कर सकते थे? वकील हिचकिचाते हुए बोला। किसके पास डॉक्यूमेंट्स थे और कौन से साइन थे? शहरयार नासमझी में बोला। मेरे पास। तभी दरवाजे से आवाज़ आई। सबने मुड़कर उस दरवाजे में से आते इंसान को देखा। अजीर, तुम यहाँ क्यों? फरहान साहब बोले। अब अपने ही ऑफिस में आने के लिए? भला मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। वो हंसते हुए बोला। आप शायद अकल से पैदल हो गए हैं, ये मेरा ऑफिस है, तुम अपनी फैक्ट्री में जाओ। शहरयार गुस्से से बोला। पहले ही इतना सब हो जाने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था। अरे बरखुरदार, सब्र रखो, सब्र, और मुझसे ज़रा तमीज़ से बात करो। आखिर अब मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ। वो हंसते हुए बोले। क्या बकवास है ये सब? फरहान साहब गुस्से से बोले। क्या भाई साहब, ये तो आप अपने बेटे से पूछिए, जिसने खुद आपकी सारी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा मेरे नाम किया है। अजीर साहब ने सब पर बम फोड़ा। शहरयार चकरा कर रह गया। फरहान साहब एकदम सोफे पर बैठे। व्हाट? ये क्या बेवकूफ़ाना बात है? मैं क्या पागल हूँ जो यूँ मुँह उठाकर 70% बिजनेस आपके नाम कर दूंगा? शहरयार गुस्से से आगे बढ़ा। मैं जानता था तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, तो ये लो, मैं प्रूफ साथ लाया हूँ। अजीर साहब फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले। शहरयार ने जल्दी से फाइल पकड़ी और पेपर्स पलट कर देखने लगा। तभी वकील ने फाइल ले ली। जी सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपने खुद इन पेपर्स पर साइन किया है। वकील पेपर्स चेक करते हुए बोला।
बड़े ही बेवकूफ़ हो बेटा, बिना पढ़े सारे कागज़ों पर दस्तखत भी कर दिए। क्या फरहान भाई, कैसा झल्ला बेटा है आपका, वो तो मस्खराना अंदाज में बोले। शहरियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने बालों में हाथ डाले चक्कर लगा रहा था। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता था? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। फरहान साहब दुख भरे लहजे में अजीर के पास खड़े होकर बोले। ये तो खुद से पूछें बड़े भाई साहब, हमेशा मुझे ही नीचा दिखाया गया, वो स्कूल और कॉलेज या ऑफिस, हमेशा सिर्फ फरहान फरहान फरहान। अजीज था कहाँ? फरहान अम्मी अब्बू का लाडला, फरहान हर क्लास का टॉपर, फरहान की मशहूर इंडस्ट्री, बस फरहान फरहान फरहान। इन सब में मैं कहाँ था? इसीलिए मैंने आपसे सब छीन लिया। और अब आपको नजमा की बेटी नज़र आई, अपने बेटे से बयाने के लिए मेरी बेटी नज़र नहीं आई? सोचा मेरी बेटी की आपके घर शादी हो गई तो सब मेरी बेटी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा और फिर मेरा, पर नहीं, वो मनहूस अबीरा को ले आए। अजीर अपने अंदर का गंद घोल रहे थे। अभी इस ऑफिस में शहरियार फरहान और अजीर ही थे। फरहान साहब उसके मुंह से इतनी नफरत सुनकर हैरान रह गए। बस बस बहुत हुआ चाचू, हमने कभी आपको कम नहीं समझा। मुझे तो आपकी सोच पर घिन आ रही है। छोटी छोटी बातों को सवार करके इतना घिनौना खेल खेला आपने। शहरियार गुस्से से चिल्लाया। आवाज़ नीची रखो, अब फरहान इंडस्ट्रीज़ का मैं मालिक हूँ, अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से। अजीर गुस्से से चिल्लाए और बाहर से सिक्योरिटी बुलवाई। शहरियार गुस्से से खोलता बाहर की तरफ बढ़ा। बहुत पछताओगे तुम, फरहान साहब दुख भरी नज़रों से देखते हुए बोले और मरे हुए कदमों से बाहर निकले। अजीर साहब कह कहे लगा रहे थे, फाइनली ये सब मेरा हो गया। कितने पापड़ बेलने पड़े इन सब के लिए। वो हंसते हुए शहरियार की कुर्सी पर आ बैठे। ये सब क्या है? तुमने उन पेपर्स पर साइन क्यों नहीं करवाए? और कौन से पेपर्स पर साइन करवा लिए? नीलम आज बैठकर पेपर्स चेक करने लगी तो पता चला उन पेपर्स पर साइन ही नहीं हुए थे। तभी उसने शुमाइला और फहद को अपने घर बुलाया था, उन्हीं पर जिन पर मैंने करवाने को बोला था। शुमाइला जूस साइड पर रखते हुए बोली। क्या मतलब? नीलम हैरानगी से बोली। अरे बड़ा आसान है, मैंने ना उन पेपर्स को बदल दिया और उनकी जगह अपने पापा के नाम के पेपर्स रख दिए। अब 70% हिस्सा उनका हो गया। शुमाइला मुस्कुराते हुए बोली। व्हाट, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? ये क्या बकवास कर रही हो? नीलम उसकी बात सुनकर चिल्लाई। अरे कूल डाउन, तुमने क्या सोचा हम दोनों को इस्तेमाल करके सारे बिजनेस पर कब्जा तुम कर लोगी और हम तुम्हारा मुंह देखते रह जाएंगे? तो नो बेबी, मुझे शुरू से ही तुम्हारे सारे प्लान का पता था। तो सुनो क्या हुआ। उस दिन जो पेपर्स तुमने फहद को दिए साइन करवाने के लिए, वो मैंने तब्दील कर दिए और उन पेपर्स के बदले मैंने अपने बाबा के नाम के पेपर्स रख दिए। अब हो गया ये 70% हिस्सा तो मेरे पापा के नाम पर, और शहरियार उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो बस मैं उसे बोलूँगी अबीरा को तलाक दे और मुझसे शादी कर ले, और अपने पैसों को वापस पाने के लिए वो वही सब कुछ करेगा जो मैं करवाऊँगी। शुमाइला इतरा कर सबको बताती गई। व्हाट नॉनसेंस फहद, तुम इसके साथ कैसे मिल सकते हो? मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा पैसे दिए हैं? नीलम गुस्से से फहद पर चिल्लाई। ओ मैडम, मैं तो ऐसा बंदा हूँ जहाँ अपना थोड़ा सा फ़ायदा देखा वहीं का हो गया। फहद हंसते हुए बोला। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। नीलम गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ी। ओ प्लीज़ मिस नीलम, अपनी औकात में रहो और जाकर मॉडलिंग करो, कुछ पैसे कमाओ, वरना जितनी तुम कंगाल हो ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। शुमाइला ने उसे धक्का दिया और वो सीधी ज़मीन पर गिरी। चलो फहद, शुमाइला उसके साथ घर से निकल गई। पीछे नीलम हैरानगी से सारी सिचुएशन को समझने लगी। आज उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से हराया था, और वो भी उससे छोटी लड़की ने। शहरियार फरहान साहब को लिए घर आ गया। फरहान साहब ने उसे अभी तक कुछ नहीं बोला था। बाबा यकीन जानिए मैंने वो पेपर साइन नहीं किए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। शहरियार उनके कमरे में आकर बोला। शहरियार, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, तुम जा सकते हो, फरहान साहब सख्त लहजे में बोले। शहरियार गुस्से से कमरे में आ गया। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? वो कमरे में दाखिल होकर ज़ोर से दरवाज़ा मारते हुए बोला। अबीरा जो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी, शहरियार को इतने गुस्से में देखकर फ़ौरन उसके पास आ गई। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो परेशानी से बोली। सब कुछ खत्म हो गया। शहरियार ने गुस्से से सामने पड़े शीशे के गुलदान को सामने वाली दीवार पर दे मारा। अबीरा ने डर कर कानों पर हाथ रख लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। वो गुस्से से बेड पर बैठ गया। शहरियार, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अबीरा शहरियार को इतना गुस्से में देखकर परेशानी के आलम में उसके करीब आ बैठी।
कुछ मत पूछो, बहुत बुरा हुआ। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज़ बताएं क्या बात है। अबीरा शहरयार के अजीबोगरीब रवैये को देखकर परेशान हो गई थी। शहरयार ने उसे सब बताया, जिसे सुनकर अबीरा शौक के अंदाज में उसे देखे गई। मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने कब पेपर साइन किए, किसने ला कर दिए। ऐसा ऑफिस में कौन सा गद्दार हो सकता है जो इस तरह की हरकत करे, शहरयार सोचते हुए बोला। अबीरा के हाथ एकदम लर्जे। उसे एक पल में फहद याद आ गया। ये ज़रूर फहद का काम है। या अल्लाह, वो इतना कैसे गिर सकता है, वो दिल में सोच रही थी। अब सब जो लग रहा है मुझसे बच जाएंगे, पर शायद ये लोग भूल चुके हैं कि मैं शहरयार हूँ। इन सब की ईंट से ईंट बजा दूंगा। गुस्से से वो बेकाबू हो रहा था। आप ये पानी पिएं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। अबीरा उसकी बात सुनकर ख्याल की दुनिया से वापस आई और गिलास में पानी डालकर शहरयार की तरफ बढ़ाया। शहरयार ने पानी ले लिया। आप कैसे सब वापस लोगे? जब लीगल पेपर्स पर साइन हो चुके हैं तो अब क्या करोगे? वो वापस उसके करीब आकर बैठ गई। चाचू ने बहुत गलत काम किया, पापा का भरोसा तोड़ा है। देखो ज़रा जाकर पापा की क्या हालत हो गई है। प्रॉपर्टी के जाने से इतने दुखी नहीं जितने अपनों के पीठ में छुरा घोंपने की वजह से हैं। खुदा की कसम एक एक को सजा दूंगा, और सबसे पहले खुद को, शहरयार गुस्से से बोला और साथ ही साथ अपने हाथ में पकड़े ग्लास को जोर से दबाया। शीशे का ग्लास टूट गया और टुकड़े हाथ में चुभ गए। शहरयार क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं? ज़रूरी नहीं हर मसले का हल गुस्सा हो। अबीरा जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर शीशे निकालने लगी। पूरा हाथ खून से भर गया था। इसी हाथ ने साइन किए थे। अच्छा हुआ, शहरयार हाथ को देखते हुए बोला।